ओके, देखिए आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखिए अगर आप बात करें बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, ऐसे समझिएगा। अगर मैं ये लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैन आई से दैट इट इज अ polynomial of second degree? Please tell me. It is a polynomial of second degree. Okay, please it should be noted down that अगर आपको याद हो हम polynomial को px से डिनोट करते थे। If this polynomial px is equated to 0, then it is known as quadratic equation. If this polynomial is equated to 0, then it is known as quadratic equation. अब यहां पर आपको देखिए क्या बताना है, मेन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यानी कि जब भी मैं ऐसा लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real number, it is a quadratic equation. Now the next comes roots of a quadratic equation. What do you mean by roots of a quadratic equation? Roots of a quadratic equation. देखिए, try to understand that a real value x equal to alpha is said to be a root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Oh, you can say that alpha must satisfy the equation. In turn, you can say that if you are writing quadratic equation by px equal to 0, then alpha will be a root of it when p of alpha is 0. Let us consider one example of it. If I am having my equation is x square minus 3x plus 2 equal to 0. Please tell me, it is a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation. I can say that x equal to 1 is a root of this equation. It is a root of given equation. Reason that is why I am claiming it is a root, because x equal to 1 is going to satisfy it. Substitute 1 square minus 3 into 1 plus 2 equal to, now let us simplify it, 1 minus 3 plus 2, that is 0. So x equal to 1 satisfy it. अब यहां पर आप दो तीन बातें और समझिएगा प्लीज। सपोज एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और आपको बताने इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं। एक्स प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैन आई से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आंसर इज नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो इट इज टर्निंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब. It is not a quadratic equation. And what about this? Suppose if I am writing x square plus 2 root x
minus 3. Again, it is not a quadratic equation. Why it is not a quadratic equation? Because the powers of the variable has to be a positive integer. So it is not a quadratic equation. ये बातें सारी क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई. क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ. जैसे एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो देखिए, द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट. If one root of the equation 2x square plus kx minus 6 equal to 0 is 2, the question is find the value of k and find other root also. देखिए, व्हाट आई विल डू, अब x इक्वल टू 2 इसका रूट है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इट. देखिए, सॉल्यूशन में x की जगह 2 डाल दीजिए. 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0. दैट इज दिस इज नथिंग बट 8 प्लस 2k minus 6 equal to 0. When you are going to simplify it, then k is turning out to be minus 1. If I substitute the value of k, I will be having 2x square minus x minus 6 equal to 0. आप लोगों ने अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, यू मस्ट हैव स्टडीड मिडिल टर्म स्प्लिट. पढ़ा होगा बेटा? प्लीज टेल मी. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे? 12 आना चाहिए माइनस का, तो 2x स्क्वायर. आप देखिए ये वाली और ये वाली टर्म, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो -12 होना चाहिए और सम हमारा क्या होना चाहिए? -1. तो क्या किया हमने? -4x स्क्वायर, सॉरी 4x आएगा, स्क्वायर नहीं, प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. लेट अस फैक्टराइज इट. यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2. So you will be having x minus 2 into 2x plus 3 equal to 0. This will imply either x equal to 2 or x equal to minus 3 by 2. So these are the roots. तो सेकेंड रूट उसका कितना आया? -3/2. क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन. अरे क्लास कब तक चलेगी? क्यों, क्या हुआ? सर मेरी दूसरी क्लास होती ना. कोई बात नहीं, पहले ये तो अटेंड कर ले यार. यस सर, आज थोड़ी मतलब लेट हो गई है क्लास इसलिए. कोई बात नहीं. ओके, अब देखिए जरा ध्यान से. मैं पहले से आपको बताएंगे मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हाउ टू सॉल्व मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सबसे पहला तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट ही आएगा. दूसरा आएगा बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. या जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बोलते हैं. तीसरा आएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड.
ये तीनों मेथड अभी मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझिए। मिडिल टर्म स्प्लिट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट में आप कैसे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ए और सी का प्रोडक्ट ए सी आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करना होता है हमें। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 5, और सम क्या आना चाहिए, 6। तो बट ऑब्वियस ये कैसे बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5, इज दैट ओके। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसको आप सोल्व करते थे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आती थी, या तो -1 आएगा या -5, ये इसके रूट्स आ गए। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो देखिए कैसे सोल्व होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी देखिएगा हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये भी एक ट्रिक है, इतना टिपिकल नहीं है, बट यू हैव टू लर्न दैट टेक्निक आल्सो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, क्या था, सोल्व 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसका प्रोसेस समझिएगा। प्रोसेस क्या है पहले तो मैं लिख देता हूँ। अगर कभी भी आप इसको सोल्व कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, तो ए कॉमन ले लो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए, ये आ जाएगा। और आप देखना मैं यहीं से डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आपके लिए डेवलप करूंगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पूरे का स्क्वायर, चलिए प्लस हाफ ऑफ, ये हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी बाई ए, तो बी बाई ए का हाफ क्या आएगा, बी बाई 2a, उसका हाफ, तो उसका स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस सी बाई ए। इफ यू सी दिस टर्म, दिस बिकम एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं, तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ध्यान से देखना है भाई प्लीज। यहां अगर इसको दोबारा मैं सोल्व करता हूं, मैंने एलसीएम ले लिया और माइनस साइन बाहर ले लिया, 4a स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बाहर a है, a को अंदर ले जाओ, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, जब यहाँ आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a इक्वल टू 0। अगर अब आप इसको शिफ्ट करेंगे b बाई 2a का स्क्वायर, यू विल बी हैविंग b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अब इस a से डिवाइड करेंगे हम, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
by 4a square. Now what is going to happen if I take the square root? It will give me plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं d मान लेता हूँ, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे. तो x प्लस b बाई 2a इज प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. तो x आ गया आपके पास माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर रूट्स. आपका d किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहां कंडीशन आती है, इफ योर डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे. इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल, यानी सेम. Number 3, if this discriminant is less than 0 then no real roots exist. Or otherwise you can say that the given quadratic equation is not factorizable. Is not factorizable. ये सारा समझ में आया बेटा? प्लीज टेल मी ये प्रोसेस. प्लीज रिप्लाई करिए. यस यस सर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखो मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा इससे. डन. हो गया? यस सर. डन. देखो जरा, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये सारा मेथड बना. अब अगर मान लीजिए मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था, याद करिए, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना. तो सबसे पहले 9 कॉमन ले लो. 15/9 ऑफ x प्लस 6/9 ऑफ इक्वल टू 0. अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ऑफ एक्स प्लस 2/3. अब क्या करूंगा? 5/3 का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. क्या आएगा? 5/3 का हाफ 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, plus 2/3. If you will notice this quantity become x minus 5/6 का whole square. This is minus 25/36 plus 2/3. Is that okay? Please tell me. अब एक और बात, 9 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? इस डिफरेंस को 0 होना पड़ेगा. इज इक्वल टू 25/36 माइनस 2/3. इफ आई सोल्व दिस, 36 इज द एलसीएम. 25 माइनस 24 x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इसके बराबर आया. तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36. सो x माइनस 5/6 इज प्लस माइनस 1/6. एक बार प्लस ले लो तो x आ जाएगा 5/6 प्लस 1/6, दैट इज 1.
एक बार माइनस ले लो, -1/6 प्लस 5/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके रूट्स आ गए, x इक्वल टू 1 एंड 2/3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब इसी को डिस्क्रिमिनेंट से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे ये दे रखा 2x² -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट से कैसे करूँगा? इससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना है 2, b कितना है -5, c कितना है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स आते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a, यानी ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता था b² माइनस 4ac। 25 माइनस 24 ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज 1। डाल दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4। तो आपके रूट्स क्या आएंगे 6/4 एंड 4/4, यानी कि 3/2 एंड 1। दीज आर द रूट्स। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। तो ये 3 बेसिक मेथड मैंने सिखाए हैं, यहाँ तक ही रख लो, ठीक है? अपनी क्लास भी अटेंड कर लो अब, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको बेटा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक ही रख लो, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कराऊंगा फिर, ठीक है?